اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اب سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ بھی ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی سنا ہوگا یا انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی سیکھی ہوگی، قرآن کی تفسیر بھی جاننی ہوگی، لیکن بہت سے لوگ میری طرح کے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کو اردو میں سنا ہو، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا مجھے اتنا اچھا لگا تھا، اور میں نے سوچا او مائی گاڈ، مجھے آج پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے، اور اتنا آسان مجھے لگا، کیونکہ دیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے آف کورس استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو جاننی ہوگی، جیسے وراثت کا قانون، طلاق کا، مرنے کی چیزوں کا، اور یہ سارے کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں ایک پراپر ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر پیغام جو ہے وہ اتنا آسان ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، تو اتنا کلیئر پیغام ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، نیبرز کے ساتھ کیسے، اپنے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے جن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہو ان کے ساتھ کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے، اور پھر ایک کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو، چغلی نہیں لگاؤ، تم دیکھو کسی پہ ظلم نہیں کرنا، دیکھو فساد نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ تو ہمیں آ ہی جاتی ہے نا سمجھ کے، اس سے میرا رب بہت ناراض ہوتا ہے۔ پھر ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو، دیکھو اگر کبھی پرابلم ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، دیکھو اگر دوزخ ہوگی تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی، اور ایسے نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، دیکھو اچھے کام کر لو، اس دنیا میں جب تک ٹائم ہے عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، دیکھو اگر تم نیک کام کرو گے، تھوڑی سی دنیا کھیل تماشا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا زندگی ختم ہو جائے گی، نیک عمل کر جاؤ گے تو پھر جنت الفردوس میں ہمیشگی کی زندگی میں چلے جاؤ گے۔ تو کیا مشکل پیغام ہے، سمجھ اتنا تو آتا ہے نا، جتنی ہماری زندگی میں اپلائی کرنے کی چیزیں ہیں اتنی ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات کہ شرک نہیں کرنا، اس پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ تو کسی صورت منظور نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراپر پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تھا جنت سے، تو کہا تھا کہ اب جو پیغام ہے وہ میری طرف سے آئے گا، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بہت سے انسانوں کو، جنوں کو دوزخ کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جن کے دل سخت ہیں۔ تو اتنا خوبصورت پیغام جب سمجھ آتا ہے پھر دل میں محبت ہوتی ہے کہ اب اس کو میں ڈیٹیل میں بھی سمجھوں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اس قرآن کو ہم جس طرح سے اردو میں پڑھ رہے ہیں اس کا وہ اجر ہوگا جو قرآن جو لینگویج میں، جیسے عربی لینگویج میں پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ سمجھنا تو ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ الف لام میم جو ہے، اس میں اگر الف پہ 10 نیکیاں تو لام پہ 10 نیکیاں تو میم پہ، مطلب ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو ہی قرآن آتا ہوگا۔ دیکھیے یہ سفر بڑا خوبصورت ہے، جب ہم انڈرسٹینڈ آ جاتی ہے نا چیز، جب ہم اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے عمل میں کیوں نہیں آ رہا، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، رائٹ؟ تو جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ واللہ میں آپ کو جو بات کہنے جا رہی ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر آپ کے ڈانس کر رہا ہے، جیسے اندر اتنی ہیپینس، اتنا سکون، اتنا اطمینان ہوتا ہے جس کو کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس قرآن کے سفر میں ہمیں یہ سارے اپنے پیغام سمجھا دے اور ہمارے دل میں اتار دے، آمین یا الہی آمین۔ اب دیکھیے شروع کرتے ہیں 17 پارہ، اور آغاز کرتے ہیں سورۃ انبیاء سے۔ بہت خوبصورت سورت ہے، اور اس میں آپ کو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات بھی سمجھ آئیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ
यहाँ पे शुरू ही सूरत अंबिया का जहाँ पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों वक्त करीब आ गया। देखिए इसमें हम मौत का भी वक्त ले सकते हैं, इसमें हम क़यामत का भी वक्त ले सकते हैं कि कोई भी वक्त को अगर आप देखते हैं तो अगर हम मौत का लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो मौत कभी भी आ सकती है और तुम्हारे बिल्कुल ही करीब है, और वो तुम बेखबर पड़े हुए, तुम्हें पता नहीं है कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाना है। अब इस आयत को देखिए कि ये हमने तो इतने कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए इसको नाजिल हुए, लेकिन आज आप देखिए कि हमारा वही हाल नहीं है। कि इमरान खान की जरा स्पीच पे गौर कीजिए कि लोगों, ये कोरोना वायरस आप लोगों की जिंदगियां लेने वाला है, आप घरों से ना निकलो, डिस्टेंस कर लो, अपने आप को महफूज कर लो, पर लोग क्या लग नहीं रहा ऐसे कि फी गफलतिन मोरिदून पड़े हुए कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना। हमारे इंसान की नेचर ही ऐसी होती है ना, उसको लगता है कि थोड़ी देर तो वो घबराता है और उसके बाद वो नॉर्म होनी शुरू हो जाती है चीजें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही मोहब्बत है कि देखो क़यामत का वक्त पास आ रहा है, तुम्हारी मौत का वक्त पास आ रहा है और तुम बेखबरी में पड़े हुए हो। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है इसे वो खेल कूद में खेल और कूद में ही सुनते हैं। मीन्स कि जब उनके पास कोई नसीहत आती है, उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है उसे वो खेल और कूद में सुनते हैं, जैसे वो सीरियस ही नहीं होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई उनको बात बताते थे, जो नई आयत आती थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं उधर जाता। इनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियां की कि वो तुम ही जैसा तो इंसान है, फिर क्या वजह है जो तुम आंखें देखते जादू में आ जाते हो। पैगंबर ने कहा कि मेरा परवरदिगार हर उस बात को जो जमीन और आसमान में है बखूबी जानता है और वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए ये इतनी तसल्ली होती है इस बात को सुन के कि वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। कई दफा ऐसे होता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही होती है, या कभी कोई हमसे कोई ऐसी बात कह के तो आराम से निकल गया और उसको परवाह ही नहीं। तो लेकिन जब ये एहसास होता है कि कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई है, या मेरे साथ ऐसे ज्यादती हुई है, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो तो सुनने वाला है और वो जानने वाला है, वो तो सब वक्त इंसान को देख रहा होता है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इतना ही नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि ये कुरान परागंदा ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने अस खुद खड़ लिया है, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाता जो अगले पैगंबर लेके आए थे। उनकी यही जो मुशरिकीन मक्का थी, उनकी यही तो एक बात थी कि जिसमें वो बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे कि कोई मौजज़ा लेके आओ। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि इनसे पहले जितनी बस्तियां हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थी, तो क्या ये अब ईमान नहीं लाएंगे? तो उससे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे। बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुमको इल्म नहीं है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लो, उनको ये सब बातों का पता है, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। क्योंकि अहले किताब की अगर बात आप समझते हैं तो अहले किताब तो पहले से उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किताब थी और रसूल भी थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि हमने उनको ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनसे किए हुए सब वादे सच्चे किए, उन्हें और जिन जिन को हमने नजात बख्शी, और हद से निकलने वालों को हमने गारत कर दिया। यकीनन हमने तुम्हारी जानब किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, लेकिन क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते हो। देखिए अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये किताब जो मैंने नाजिल की है इसमें जिक्र मीन्स कि तुम्हारे लिए नसीहत है, तुम फिर भी इसमें क्या नहीं समझते हो, तुम अकल नहीं रखते हो। और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो जालिम थी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को गुस्सा आया और बस्ती को तबाह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें रीजन बता रहे हैं कि जो जालिम थी और इनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इसे भागने। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब भाग दौड़ मत करो, तो जहां तुम्हें आसूदगी दी गई है वहां वापस लौट आओ और अपने मकानों की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम जालिम थे। तो फिर तो इनका यही कौल रहा, यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी हुई राख की तरह बना दिया। हमने आसमान और जमीन और इसके दरमियान की कोई चीज खेलते हुए नहीं बनाई है। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास ही बना लेते, और अगर हम ऐसा करते तो हम ऐसा कर सकते थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, फिर सच झूठ का सर तोड़ देता है और वो इसी वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बाइसे खराबी हैं। आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, और जो इसके पास है मीन्स फरिश्ते, वो तो अल्लाह की इबादत में ना सरकशी करते हैं और ना ही थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं और जरा सी देर भी सुस्ती नहीं करते हैं।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या इन लोगों ने जमीन की मखलूक में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो जिंदा कर देते हैं, कि मीन्स इनको ये माबूद बनाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दें? अगर आसमान और जमीन में सवाए अल्लाह के और भी माबूद होते तो ये दोनों जमीन और आसमान जो है वो दरम भरम हो जाते। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श का रब है, हर उस वस्फ के पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है और सब इसके आगे जवाबदेह हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो, लाओ अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की किताब। मतलब किसी भी किताब में कोई दलील बताओ कि अल्लाह ने कभी ये कहा कि तुम शिर्क कर सकते हो। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते और इस वजह से मुंह मोड़ लेते हैं। देखिए, अक्सर लोग हक को नहीं जानते। जिस तरह से हम कुरान पढ़ते हैं, हम जानते ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिर तभी तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन उसकी हुज्जत तमाम हो गई जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछेंगे कि किताब तो तुम्हारे हाथ में थी ना। और अब तो देखिए हुज्जत बिल्कुल तमाम हो गई, क्योंकि हमने उर्दू में पढ़ ली है, हमें समझ आ गई कि हमारे रब ने हमें क्या क्या कहा है। और अल्लाह से वही दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आसानियां करने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है ना। तो इससे पहले भी जो रसूल हमने भेजे इनकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बस मेरी ही इबादत करो। मुश्रिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है, बिल्कुल गलत कहते हैं। उसकी जात पाक है, बल्कि वो तो उसके बाइज्जत बंदे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके आगे पीछे के तमाम अमूर से अल्लाह वाकिफ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजज इसकी जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश हो। देखें, ये गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते बजज उसके जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश हो, वो उसी की सिफारिश करेंगे। और अगर कोई भी ये कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ, तो हम उसे दोज़ख का अजाब सिखाएंगे। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उनको जुदा कर दिया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया? और क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ पैदा किए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करे। आसमान को महफूज छत भी हम ही ने बनाया। देखिए, आसमान को देख के ऐसा नहीं लगता जब बादल जा रहे होते हैं इधर से उधर, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बादल का टुकड़ा जमीन पे गिर जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर अपनी निशानियां बताते हैं, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं करते। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और हर चीज अपने मदार में तैर रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी है। क्या अगर आप मर जाते हो तो वो क्या हमेशा रहने वाले हैं? हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हम हर इंसान को उसकी बुराई और भलाई में आजमाते हैं। अगर हम सब तुम्हारी तरफ अगर और तुम सबको आखिर हमारी तरफ लौट कर आना है। ये मुनकरीन तुझे जब भी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि क्या यही है जो हमारे मबूदों को बुरा कहता है, और वो खुद ही रहमान की याद से बिल्कुल गाफिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, और हमारी निशानियां देखने के लिए भी जो जल्दी मचा रखता है, वो उसको कह दो कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इनकी निशानियां दिखा देंगे। और कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बता दो कि ये अजाब आखिर कब आएगा। काश ये काफिर जानते कि इस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना इनकी मदद की जाएगी। हाँ, वादे की घड़ी इनके पास अचानक आ जाएगी और इनको हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग इसे टाल सकेंगे और ना ही जरा सी भी इनको मोहलत दी जाएगी। और तुझसे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया है, बस हंसी करने वालों को इस चीज ने घेर लिया कि वो हंसी उड़ाते थे और उनको उनके अजाब ने घेर लिया। इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से ही गाफिल हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रफाकत दिया जाता है, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादों को जिंदगी के सरो सामान दिए, यहाँ तक कि इनकी उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? कह दीजिए कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि अल्लाह की तरफ से जो मुझे पैगाम आता है मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जा रहा है।
اللہ ना करे कि हम ऐसे लोगों में हो जाएं कि हमारे हाथ में कुरान हो और हमें पता ही ना हो कि इस कुरान में क्या लिखा है। अगर इन्हें तेरे रब का कोई अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठे कि हाय हमारी बुरी किस्मत, यकीनन हम गुनाहगार। क़यामत के दिन हम दरमियान में ला खड़ा करेंगे ठीक ठीक तोलने वाले तराजू को, फिर किसी पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। देखिए ऐसी आयत पढ़ के इतना डर लगता है कि हम अपने अमाल क्या लेके जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जो तराजू में तुलेंगे, क्योंकि वहां तो हर एक का तराजू में तुलना है ना, उसका नाम है अमाल। तो लेकिन काफिरों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके लिए कोई तराजू ही नहीं होगा, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा मुसलमान का होगा तो हम उसको, जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा, तो हम उसे लाख हाजिर करेंगे और हम काफी हैं हिसाब लेने वाले। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फैसला करने वाली नूरानी और परहेजगार किताब दी थी और जो इसमें वाज और नसीहत थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं, अल्लाह करे ये लोग हम ही हों कि बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांप रहते हैं। और ये नसीहत और बरकत वाला कुरान भी हम ही ने नाजिल फरमाया, तो क्या फिर तुम इसके मुनकिर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे, जबकि इसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो, क्या ये तुम्हारे किसी बात का जवाब दे सकती हैं? हमने अपने बाप दादों को, उन्होंने सब ने ये कहा कि हमने उनको यही करते देखा है। आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही पर हो। कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच कोई हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो? आप फरमा दीजिए नहीं, दर हकीकत ये है कि तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं इसी की बाबत तुमसे बात करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग हमारी आयात को झुटला रहे थे, इनके मुकाबले में हमने उनकी मदद की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की। यकीनन वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को डुबो दिया। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे और कुछ लोगों की बकरियां रात को उसमें चर गई थी और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने इसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म दे रखा था। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे जो तस्बीह करते थे, और परिंदे भी दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हें बचाए। क्या तुम शुक्रगुजार नहीं बनोगे? हमने तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मौजज़ात जो है उनका जिक्र कर रहे हैं, जो इसके फरमान के मुताबिक इस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना थे। और इसी तरह से बहुत से शयातीन भी हमने इसके ताबे किए जो इसके फरमान से गौता लगाते थे और इसके सिवा और भी बहुत से काम करते थे, और इनके निगहबान हम ही तो थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए हर मौजज़े के बाद कहते हैं कि वो अल्लाह की वजह से था। और याकूब और अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसके अहलो अयाल अता किए, बल्कि इसके साथ वैसे और भी और खास मेहरबानी की ताकि सच्चे बंदों के लिए ये बस सबब नसीहत हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ पे बार बार बात बता रहे हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से इन नबियों ने, इन रसूलों ने दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह कहते हैं वो मेरे सच्चे और नेक बंदे थे। और इस्माइल और अदरीस और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। ये सब लोग नेक थे। मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि वो गुस्से में चल दिया और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा माबूद कोई नहीं है और तू ही पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। देखिए यही दुआ हम पढ़ते हैं ना कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और हमने इसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लेते हैं। ये गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो बात करते हैं ना वो यही बात है कि हम ईमान वालों को बचा लेते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू तो बहुत ही बेहतर वारिस है। हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए
اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر، خوف سے پکارتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو خوف سے دعا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عاجزی کرنے والے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پاک دامن بی بی مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے گا، یاد رکھیے نمبر 1، جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا اور اس کی کوشش کی بقدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعہ ہم قصوروار تھے۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور اگر سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں چلا کر کہیں گے، اور وہاں پہ ان کا چلانا ایسا ہوگا کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکیاں پہلے سے ٹھہر چکی، وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو جہنم سے دور رکھے جائیں۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہیں سن سکیں گے، اللہ اکبر، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ میں بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور یہی تمہارا رب کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو نیک ہے۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ اس کو پیدا کیا، اسی طرح سے دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، اور ہم اپنے اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور ہم ہے بھی ایسے عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، تو تم اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر چکا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، مینس قیامت کا۔ تو البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو یا ایک مقررہ وقت تک کہ فائدہ پہنچانے کی جگہ دیکھیں اس میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے قیامت کا، ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو یا ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اب دیکھیے ہم نیکسٹ سورہ ہے سورت حج، اور سورت حج جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے وہی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے آسان کر دے، ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیت بیان کر دی کہ قیامت کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کیونکہ لوگ تو ایسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ہاں قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے، اب ہر وقت تو نہ ڈراؤنا ہم لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔
बाज लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं और वो भी बेइल्मी के साथ, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिस पर क़ज़ाए इलाही लिखती गई है कि जो कोई इसकी रफाकत करेगा वो इसे गुमराह कर देगा। कौन? शैतान। और आग की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और उसे आग के अजाब की तरफ ले जाएगा। लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर खून और फिर गोश्त के लोथड़े से, जो सूरत दिया गया और बेनक्शा भी है। ये हम तुम पर जाहिर कर देते हैं, इसलिए करते हैं ताकि तुम अल्लाह की कुदरत जानो। और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहमे मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बाज तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं, यानी माँ के पेट में भी छोटी जब वो होते हैं उस वक्त भी उनकी वो फौत हो जाते हैं। और बाज बेगैस उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेगैस उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाते हैं। आपने अगर अपने घर में किसी बुजुर्ग को देखा होगा तो आप अच्छे से इस आयत को समझेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बयान कर रहे हैं कि कितने समझदार अक्लमंद होते हैं, लेकिन जिस वक्त ऐसे बुढ़ापे की एज में आते हैं कि उनको याद भी नहीं रहता, उनकी यादाश्त खत्म होनी शुरू हो जाती है। वो जो इतने इंटेलिजेंट माइंड होते हैं वो किधर चले जाते हैं, उनके दांत सारे गिर जाते हैं, उनको जायका उनका खत्म हो जाता है, उनसे चला नहीं जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये उसकी निशानियों में से है। और तू देखता है कि जमीन बंजर और खुश्क है, फिर जब हम इस पर बारिश बरसाते हैं तो वो उभरती और फूलती है और हर किस्म की रौनक और नबातात उगाती है। अब ये इसलिए है कि अल्लाह ही का हक है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह के एग्जाम्पल्स देके कहते हैं कि जैसे जमीन थी, बंजर थी, उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बारिश बरसाई तो कैसे फूल पौधे निकलते हैं और फिर कैसे खजा आती है और सब खत्म हो जाते हैं और हवाएं उनको लेके उड़ जाती है। तुम्हारा भी यही हाल होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये है और ये कि क़यामत कतन आने वाली है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कब्रों वालों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। बाज लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बगैर इल्म के, बगैर हदायत के, बगैर रोशन किताब के झगड़ते हैं। ये इन अमाल की वजह से जो तेरे हाथों ने आगे भेजे। यकीन मानो कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला। बाज लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े हो जाते होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी पूरे इस्लाम में नहीं आते। कभी वो बिल्कुल किनारे पे होते हैं कि जहाँ उनको फायदा लगता है तो उधर चले जाते हैं, और अगर दूसरी तरफ फायदा लगता है तो उधर चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही लोगों की बात करते हैं कि अगर कोई नफा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं, और अगर कोई आफत आ गई तो मुंह मोड़ लेते हैं। उन्होंने दोनों जहां का नुकसान उठा लिया और वाकई ये खुला नुकसान है। अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारा करते हैं जो ना तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ही उनको नफा दे सकते हैं। यही तो दूर की गुमराही है। इसे पुकारते हैं जिसका नुकसान इसके नफे से ज्यादा करीब है। यकीनन बुरे दोस्त हैं और बुरे साथी हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान और नेक अमल करने वाले लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नहरों वाली जन्नतों में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है। जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रसूलों की मदद दोनों जहां में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांधकर अपने गले में फंदा डाल दे और गला घोंट ले, फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से क्या बात होती है जो उसे तड़पा रही है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा नजर आ रहा है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि हम अपने रसूलों को यूं ही छोड़ देंगे कि तुम उनको तकलीफें दोगे और तुम जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम कर दोगे, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को और अपने रसूलों को यूं नहीं छोड़ता। और अगर कुछ भी करना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गले में फंदा डाल के मर जाओ, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमने इसी तरह कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे हदायत फरमाता है। बेशक अहले ईमान और यहूदी और साबी नसरानी, मजूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम खुद फैसला कर देंगे। अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। क्या तूने नहीं देखा और क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में है अल्लाह अकबर सब आसमान वाले और जमीन वाले, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और सब इंसान भी। हाँ, बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका, जिसे तेरा रब जलील कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तलाफ करने वाले हैं। बस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े काटे जा चुके और उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। रब्बना ला तजअलना मिनहुम,
जिनसे इनके पेट की सब चीजें और खाले गला दी जाएंगी और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। ये जब भी वहां के गम से निकल भागने का इरादा करेंगे वहीं लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अब चखो जलने का अजाब। ईमान वाले और नेक जो लोग होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जन्नतों में ले जाएगा जिनके दरख्तों तले से नहरें लहरें मार रही होंगी, जिन्हें वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और जो सुच्चे मोतियों के होंगे। वहां पे उनका लिबास खालिस रेशम का होगा, उनकी पाकीज़ा बातों की रहनुमाई होगी। और जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रुके और मस्जिद हराम जाने और हुर्मत वाली मस्जिद में जाने से रोका, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग बराबर नहीं हैं और उनका जो भी वो जुल्म करते हैं उसका उनको बदला दिया जाएगा। हम इन्हें दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर किया इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर के तवाफ, क़याम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक और साफ रखना। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनको जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि मेरे घर को पाक और साफ रखो, उसकी सफाई का इंतजाम करो। किन लोगों के लिए? जो मेरे घर पे हज करने आ रहे हैं और उम्रा करने आ रहे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पैदल आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी और दूर दराज के तमाम राहों से तेरी तरफ चलते आएंगे ताकि अपने लिए फायदा हासिल करे और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करे। बस तुम आप भी खाओ और भूखों और फकीरों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर लेंगे और अपनी नजरें पूरी करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर का तवाफ करेंगे। और ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे लिए छुपाए जानवर हलाल कर दिए गए वजह से इनके जो तुम्हारे सामने बयान कर दिए गए हैं। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से परहेज करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को शरीक ना करना। सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिरा, अब या तो उसको परिंदे उचक ले और या फिर वो कहीं दूर दराज की जगह फेंक दिया जाए। ये सुन लो अब और सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुर्मत और एहतराम नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बहुत नाराज होते हैं। इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक का फायदा है, फिर इनका हलाल होने की जगह, अभी कुर्बानी के जानवरों का अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब उनको उनकी हलाल करने की जगह यानी खाना काबा उनको पहुंचा देना है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि स्पेशली जो लोग अमेरिका जैसे बाहर रहते हैं तो अक्सर हलाल और हराम की बात पे होता है कि हम किसका ज़बिया खा सकते हैं और किनका अहले किताब का खा सकते हैं कि नहीं। तो ये आयत आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो उन छुपाए जो ज़बा किए जाते हैं जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने इन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि हम सब का माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम इसके ताबे फरमान हो जाओ, आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। देखिए इसमें कितना क्लियर हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हम जैसे कहते हैं कि अहले जो किताब है उनका कटा हुआ हम खा सकते हैं अगर वो अल्लाह का नाम लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अहले किताब का खा सकते हो तो डन डील के हम खा सकते हैं। बाज लोगों का यही है ना। तो इसका मैं बता रही हूँ कि बाज लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं हमने सिर्फ ज़बिया ही खाना है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कह दिया कि जिस पर अल्लाह हर उम्मत का एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कुर्बानी का तरीका सिखाया, उनकी शरीयत में डेफिनेटली कुर्बानी का तरीका है। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो फिर क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो यहाँ पे वही है कि उन पे अल्लाह का नाम लेते हैं और समझ लो कि तुम सबका माबूद अल्लाह ही है। और आजिज़ कर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो कहते हैं कि इन्हें जब अल्लाह का जिक्र किया जाए इनके नहीं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे जो कहते हैं कि समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है और तुम उसी के ताबे फरमान हो, आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी दे दो। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे जो है ना उनकी जिक्र हो रहा है, बात हो रही है कि जब वो अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल थरथरा जाते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या अल्लाह का कभी जिक्र होता है या कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे दिल थरथराते हैं? हमारे इसलिए नहीं थरथराते कि हमें समझ नहीं आती कि उसमें क्या है, हम तो बस ऐसे ही नासरा कुरान की तरह पढ़ जाते हैं ना। तो अल्लाह कहते हैं कि उन्हें जो बुराई पहुंचे इस पर वो सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं
اور جو कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो इसमें से दूसरों को देते हैं। कुर्बानी के ऊंट, अब ये कुर्बानी ऊंट ज़बह करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियां मुकर्रर कर दी, इनमें तुम्हें नफा भी है, बस इन्हें खड़ा करके इस पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब वो अपने पहलुओं पर जमीन पर लग जाए तो उसे खुद भी खाओ और मस्कीन सवाल करने वालों को भी खिलाओ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह हमने चुपाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खमा तख्त कर दिया और तुम शुक्रगुजार करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला की कुर्बानियों के गोश्त, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते, ना उनके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुंचती है। ये आयत उनको सबको सुना देनी चाहिए। जो जैसे बकरा ईद आती है ना, तो फिर अपने बकरों को सजा सजा के अपने नेबर्स को दिखाना होता है कि देखिए हमारा बकरा तो बड़ा है, आपका तो बिल्कुल मरियल सा बकरा है, देखो। और उसको सैर फिर कराने इस नीयत से अगर जाते हैं कि हम सारे मोहल्ले को जरा बताएं कि हमारा बकरा जो है यू नो सबसे महंगा है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह को उनके गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारा मती कर दिया कि तुम इसकी रहनुमाई के शुक्रिये में उसकी बड़ाइयां बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुन लो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला हटा देते हैं। ये इतनी खूबसूरत मुझे आयत लगी कि देखिए सम टाइम होता है ना कि इंसान इतना सैड हो जाता है कि क्यों लोग ऐसे मेरे लिए बात कर रहे हैं। तो अगर देखें, अगर कोई ज्यादा बात कर रहा हो ना, तो फिर अपना अमल थोड़ा सा देखें कि कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं की है। क्योंकि यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं कि सुन लो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला हटा देते हैं। अब जो अगर आपके अगेंस्ट बात करेंगे, कोई आपको ताना देने के लिए कर रहे हैं, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो किसी तरह से भी चाह रहे हैं कि इनको रास्ते से हटाएं, तो आप बेफिक्र हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दुश्मनों को हटा देगा रास्ते से। कोई खयानत करने वाला नशुक्रा अल्लाह सुब्हानहू तआला को हरगिज पसंद नहीं है। जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं, इन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है क्योंकि वो मजलूम है। बेशक इनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। ये वो है जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया। अब सहाबा की जिंदगी आपको याद है कि मक्का से कैसे उनको निकाला गया था, अपने घर बार, कारोबार, बच्चे, सब फैमिली, दोस्त सब छोड़ के वो कैसे निकले थे, सिर्फ इनके इस कॉल पर कि हमारा परवरदिगार फकत अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो इबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबद और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती जहां अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह भी जरूर उसकी मदद करेगा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आप अल्लाह के कामों में लग जाए। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद यही है कि अल्लाह के कमजोर पिसे हुए लोगों की मदद करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं कि तुम उनकी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद में लग जाऊंगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी कुव्वतों वाला और गलबे वाला है। और वो हदीस आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन कहेगा कि ऐ बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी क्यों नहीं दिया, मैं नंगा था, कपड़े क्यों नहीं पहनाए। तो वो बंदा कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, आप कैसे ऐसे हो सकते हैं। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि वो मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाने जाता तो तू उधर मुझे ही पाता। वो मेरा बंदा बीमार था, वो दर्द से करा रहा था, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता तो उधर मुझे ही पाता। वो मेरा बंदा जिसके पास इनफ कपड़े नहीं थे, तेरा क्लोजेट कपड़ों से इतना भरा हुआ था कि वो गिर रहे थे कपड़े, तूने उसको नहीं दिए, तो अगर तू उसको देता वो मुझे ही पाता। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि अगर हम जमीन में इनके पांव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाजें कायम करें और ज़कातें दें और अच्छे काम का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है। अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो पहले नूह अलैहिस्सलाम, आद और समूद और कौम इब्राहिम और लूत को भी झुटला चुके हैं। और मदियन वाले भी अपने अपने नबियों को झुटला चुके। मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए। बस मैंने काफरों को यूं ही मोहलत दी कि ताकि मैं आजमाऊं कि ये क्या करते हैं और फिर मेरा अजाब देखें कि कैसा है। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहबाला कर दिया और इसलिए कि वो जालिम थी। देखिए फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार बात करते हैं कि बस्तियों को क्यों उलट पुलट कर दिया था, क्यों तबाह किया था, कि वो बस्तियां जालिम थी। बस वो अपनी छतों के बल ऊंधी हुई पड़ी हैं और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं और बहुत से बुलंद महल जो है वो वीरान पड़े हैं। क्या उन्होंने जमीन में सैरो सियाहत नहीं की जो इनके दिल को इस बात में समझने में मदद करती। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या कानों ने ही
کہ واقعات کو سن لیے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اللہ اکبر، دل کیسے اندھے ہو جاتے کہ اس میں بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی آیا ہوں، اور بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے لیے درپے ہیں اور وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا دانا اور با حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ کے سخت اور جن کے دل سخت ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بیماری ہے اور ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پورا قرآن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا کہ کس طرح سے شیطان نے ان کو بہکایا، اب اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے اوپر کیسے ہم نے دم کرنا ہے، کیسے ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے۔ تو بچاؤ کے تو سارے طریقے بتا دیے نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بچتا ہے۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بار بار جو بات ہوتی ہے، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایماندار ہے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ پہلے وہ ایماندار ہوگا، اس کا دل خالص ہوگا۔ ہم دنیاوی لوگ بھی خالص دودھ لینا چاہتے ہیں صرف، تو اس میں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، کوئی چیز ہم ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ یا رب العالمین جو محبت آپ کی ہے بس ہمیں وہ عطا کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے، اور اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان و نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہ جنت کی بات ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی ہم مسلمان جو ہے نا، ہمارے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، جنتوں کے وعدے ہمارے لیے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ وہ پھر آپ کو یاد ہے نا جو منافق، فاسق اور مومن کی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے بچا دے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ دیکھیے ترک وطن جس نے بھی کیا، اس وقت کی اگر بات لیتے ہیں تو صحابہ نے کیا تھا، اور پھر وہ جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، اور جس میں کوئی صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو دوسرے کو حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑی ٹرکی بات ہے، اگر آپ سوچیں اس بات کو تو اس لیے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
दिन को रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही हक पर है और इसके सिवा जिसे भी वो पुकारते हैं वो सब बातिल है। बेशक अल्लाह बुलंदी और किबरियाई वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से पानी बरसाता है, बस जमीन सरसब्ज हो जाती है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा मेहरबान और बाखबर है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला वही है जो बेनियाज है और तमाम तारीफें उसी की हैं। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं, और उसके फरमान से पानी में चलती हुई कश्तियां भी वही आसमान को थामे हुए है कि जमीन पर इसकी इजाजत के बगैर गिरना पड़े। देखिए मैंने यही बात आपसे कही थी ना कि कभी ऐसे नहीं होता कि कोई चीज, अभी देखिए कितनी खूबसूरत, अब बारिश को देखे तो ऐसे नहीं लगता कि कौन सी छन्नी ऊपर लगी हुई है जिसे छन छन के बारिश गिरती है। हमें तो देखने में ये लगता है ना कि आसमान एक फ्लैट सी चीज है और वहां से पानी गिर रहा है तो वो तो धड़ करके जैसे बाल्टी से पानी गिरे वैसे गिरना चाहिए। ये कैसी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है अपने बंदों पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक अल्लाह लोगों पर शफकत और नरमी करने वाला और मेहरबान है। उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी और वही तुम्हें मारेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा नशुक्रा है, ये इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें देख के फिर वैसे की वैसी हरकतें करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाएं और बुलाते रहे, यकीनन आप ठीक हदायत पर हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे तो आप कह दीजिए कि तुम्हारे अमाल से अल्लाह बखूबी वाकिफ है। बस तुम्हारे सब के इख्तलाफात का फैसला क़यामत के दिन अल्लाह खुद कर देगा। कि आपने नहीं जाना कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है। देखिए अल्लाह, और आसमान और जमीन के अंदर हम भी तो है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान जो है वो हिलता भी नहीं है कि उसके बारे में लिख लिया जाता है, और एक एक चीज क़यामत के दिन गवाही देगी। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है। और ये भी लिखी हुई बात किताब महफूज में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तो हर अमर बिल्कुल आसान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये अल्लाह के सिवा उनकी इबादत कर रहे हैं जिनकी कोई खुदाई दलील नाजिल नहीं, ना तो वो खुद ही इसका इल्म रखते हैं। जालिमों का कोई मददगार नहीं। जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयात की तलावत की जाती है तो आप काफिरों के चेहरे पर नखुशी के साफ आसार देख लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वाले पर हमला ही कर बैठे। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बदतर खबर दूं? वो आग है जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों के लिए कर रखा है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो वो एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते, वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज ले भागे तो ये उसे भी छीन नहीं सकते। बड़ा ही भूदा तालिब है और बड़ा ही भूदा वो है जिससे वो तलब किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकार रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी इनकी कोई चीज ले भागे तो ये तो उसे भी वापस छीन कर नहीं ला सकते। बड़ा भूदा है तलब करने वाला, और बड़ा भूदा है जिससे तलब किया जाता है। कि मीन्स के वो जो उसकी पैरवी कर रहे हैं, जो उसको पूज रहे हैं, वो भी बड़े खराब हैं, और जिसकी की जा रही है वो भी बड़े खराब हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक इसकी कदर ही नहीं जानी। देखिए अल्लाह की शिकायत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, कि तुमने अल्लाह की वैसी कदर ही नहीं की जैसे हक बनता था। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ही जोर और कुव्वत वाला है और गालिब और जबरदस्त है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वाले लोगों को अल्लाह ही छांट लेता है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचा रहे हैं? वो जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, आप सुनते हैं, फिर आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं, आप आगे भी शेयर करें। मुझे पता है कि कितने लोगों के जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमने अपने सारे फेसबुक में शेयर किया है, हम ये करें। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है।
اللہ چن لیتا ہے لوگوں کو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی تنگی نہیں ڈالی. دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. کیسے تھام لیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے. اور وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے. بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے. الحمدللہ.